سب سے پہلے یہودیوں کا عقیدہ جان لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، جس کا ذکر خود قرآن کہتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، یعنی یہود جو کہتے تھے اس کو قرآن نقل کر رہا ہے، یعنی یہودیوں نے یوں کہا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، یقیناً ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ وہ عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے اور اللہ کا رسول ہے، اس کو ہم نے قتل کر دیا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، اب نبی کو انہوں نے کیسے قتل کیا؟ کیوں کر قتل کریں گے نبی کو؟ اور آپ ان کو کیوں قتل کریں گے؟ قتل کرنے کے لیے، مارنے توڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی سبب ہونی چاہیے۔ کسی انسان کو کوئی بلا وجہ نہیں مارتا، کوئی انسان کسی بھی انسان کو بلا وجہ، بغیر وجہ کے، بغیر سبب کے کوئی ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے کیوں قتل کیا؟ تو اس کا جواب کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ مسیح آنے والے ہیں۔ کیا عقیدہ تھا ان کا؟ مسیح آنے والے ہیں، اور دو مسیح ہیں، ایک مسیح ابن مریم، مسیح حضرت عیسیٰ ابن مریم، یہ دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا ماننا تھا کہ ایک مسیح ایسا ہوگا جو کہ ضلالت پھیلائے گا، ایک مسیح وہ ہوگا جو ہدایت کو پھیلائے گا۔ اب یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا، یہودیوں نے سمجھا کہ عیسیٰ جو یہاں پر آیا ہوا ہے یہ ضلالت کو پھیلانے کے لیے آیا ہوا ہے، گمراہی کو پھیلانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو یہی وجہ بنی کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ جو مسیح ہے یہ تو ہمارا دشمن ہے، یہ تو ضلالت پھیلانے کے لیے آیا ہوا ہے، اس کو قتل کرنا چاہیے، یہ تو ہمارا دشمن ہے۔ تو یہودیوں کے اس عقیدے کی بنا پر یہ غلط فہمی تھی ان کی کہ انہوں نے دجال کو، جو ضلالت والا دجال آنے والا ہے، اس کو انہوں نے ہدایت والا سمجھ لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام جو آئے تھے ان کو ضلالت والا سمجھ لیا۔ تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے ادھر کا ادھر ہو گئے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے جس سے دشمنی ہوتی ہے اس کو ڈھونڈا جاتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے بہت سارے حربے اپنائے جاتے ہیں، اس کو مارنے توڑنے کے لیے مختلف شکلیں اپنائی جاتی ہیں۔ جس انسان کو جس دوسرے انسان سے دشمنی ہو تو اس کی دشمنی کو نبھانے کے لیے، اس دشمنی کو مکمل طور پر انجام پہنچانے کے لیے، انجام دینے کے لیے مختلف آدمی حربے اپناتا ہے۔ تو اسی طرح سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرتے رہے، جستجو کرتے رہے، بہت سارے تجسس جاسوسین کو انہوں نے لگا دیا کہ عیسیٰ جہاں پر بھی ملے ان کو قتل کر دیا جائے۔
یہود بڑے مکار تھے، بڑے مکار تھے. انہوں نے کئی انبیاء کو انہوں نے قتل کیا ہے. ایک نبی نہیں، دو نبی نہیں، بنی اسرائیل نے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک مخبر نے خبر دی کہ فلانے گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے. جیسے ہی ان کے پاس خبر پہنچی کہ حضرت عیسیٰ کہاں ہے، ایک گھر میں موجود ہے، تو جاسوسین جتنے بھی تھے، یہود جتنے بھی تھے، سارے کے سارے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے گھر کے اطراف میں انہوں نے گھیرا ڈال لیا. ایک آدمی جو مخبر تھا، جاسوس تھا، وہ آدمی اندر گیا کمرے میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. برفعہ اللہ الیہ، قرآن اس کو دلیل کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے برفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. میں نے کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. قرآن جو کہتا ہے وہ حق کہتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں کہتا. قرآن اللہ کا کلام ہے. خود قرآن کہتا ہے برفعہ اللہ الیہ، ہم نے آسمانوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا. اب یہ جو اندر ایک آدمی آیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی شبیہ کو بدل دیا، اس کو چینج کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت، ان کا لباس، ان کا جسم کے ہر عضو جو جیسا حضرت عیسیٰ رہا کرتے تھے، اس طرح کا ان کو شبیہ اللہ نے اس کو بنا دیا. یہ کتابوں کے اندر لکھا ہے آنن فانن ہوا. یہ تو سیکنڈوں اور منٹوں میں ہوا تھا، سیکنڈوں اور منٹوں میں ہوا تھا. میرے پڑھنے کے زمانے میں ریکٹ کے بارے میں سنا تھا. میں آپ حضرات جانتے بھی ہوں گے، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے آپ حضرات ہیں، کہ پڑھنے کے زمانے میں میں ایک چیز سنا تھا کہ ریکٹ ایک سیکنڈ میں 7000 کلومیٹر جاتی ہے. کتنے کلومیٹر؟ ایک سیکنڈ میں ریکٹ جو ہوتی ہے 7000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے. یہ ہم نے سنا تھا. آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں، واللہ عالم، میں تو نہیں جانتا، لیکن پڑھنے کے زمانے میں نے سنا تھا. تو حقیقت ہو سکتا ہے. تو ایک ریکٹ، ایک معمولی سے ایک ریکٹ جس کو انسان نے بنایا ہو اور اس کے اندر اتنی تیز رفتاری پائی جاتی ہو کہ وہ ایک لمحے میں، ایک منٹ میں 7000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتا ہو، تو کیا اللہ کے لیے ایک آن میں، ایک سیکنڈ میں، آنن فانن میں انسان کی تبدیلی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ یہ میں نے عقلی دلیل آپ کو دی ہے. اب قرآن کی ایک دلیل دیتا ہوں آپ کو، کیسے ہو سکتا ہے. قادیانیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شبیہ تھی کیسے بدل سکتی، ایک لمحے میں کیسا ہو سکتا ہے؟ قادیانیوں نے اعتراض کیا. قادیانیوں کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے جس کی دلیل پیش کی، قرآن کہتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے فرعون کے دربار میں بھیجا تھا، فرعون کے دربار میں جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو ہم نے کہا تھا کہ تم کیا کرو، لاٹھی کو ڈالو. حضرت موسیٰ جسے استعمال کرتے تھے عصا، اس عصے کو ڈالو. جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اس عصے کو ڈالا تو آنن فانن اچانک وہ سام کی شکل اختیار کر بیٹھا. قرآن کہتا ہے فَأَلْقَى عَصَا فَأَلْقَاهَا، تم ڈال دو عصا کو، فَإِذَا هِيَ حِجَّةٌ تَسْعَى، وہ اچانک کیا ہو گیا،
हय्यतुन तस्आ, दौड़ने वाला सांप की शक्ल बन गया, अचानक तब्दील हो गया, अचानक सांप की शक्ल बन गई, आनन फानन हुआ ये। वो जात, वो रब जिसने, हालांकि यहां पर तो जिनसियत एक है, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इंसान थे और जो आदमी अंदर दाखिल हुआ था मुखबिर, वो भी इंसान था। इंसान, ये भी इंसान, इंसान इंसान में चेंज करना, जबकि जिनसियत ये को कोई मुश्किल बात नहीं है। यहां पर देखिए उसके बरखिलाफ यहां पर हजरत मूसा डाल रहे हैं असा, लकड़ी, और वो हो रहा है जिंदा सांप। यहां पर तो जिन्स भी मुख्तलिफ है। जिन्स मुख्तलिफ होने के बावजूद, जिन्स मुख्तलिफ होने के बावजूद एक लम्हे में, एक ही लम्हे में, एक ही मिनट में, एक ही सेकंड में जैसे ही वो नीचे पड़ा तो सांप की शक्ल इख्तियार कर लिया। तो एक सांप, एक लकड़ी को सांप बनाने में अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, कोई दुश्वारी नहीं, एक लम्हे में वो बदल सकता है। तो कुरान की दलील से ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शबीह को उस मुखबिर आदमी के ऊपर चेंज कर दिया। शबीह अल्लाह ने ईसा की डाल दी। एक कुरान की दलील है। तो ये लोग सब के सब अंदर आए। कौन? जो यहूदी थे, जो अतराफ घेरे हुए थे, अल्लाह ताला ने हजरत ईसा की शबीह को इनके अंदर डाल दिया। तो सारे के सारे लोग अब एक के बाद दीगरे अंदर, घर के अंदर दाखिल हुए। तो देखा कि यहां पर एक शख्स मौजूद है, वही ईसा। शक्ल शबाहत से तो ईसा नजर आ रहा है। तो सारे के सारे लोग उसके ऊपर टूट पड़े, मार तोड़ किया, इतना मारा कि वो मर गया। लोगों ने देखा कि उसकी सांस तो छूटी हुई नहीं है, हां मर गया है। तो उसके बाद उसको खींच कर ले गए और सूली पर लटकाया। लेकिन इनको इस बात का एहसास हुआ कि, और जिस वक्त में ये मारने के लिए गए तो उनकी जो शक्ल शबाहत जो चेंज हुई थी, वो तो चिल्ला करके कह रहा था, अरे भाई मुझे क्यों मार रहे हो, अरे भाई मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो तुम्हारा साथी हूं, ईसा को ढूंढो, ईसा को मारो, ईसा को ढूंढो, ईसा को मारो। अब ये जब उसको मार दिया, कत्ल कर दिया, तो उसके बाद सारे के सारे लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि जब ये एक तो चीख तो रहा था कि मैं ईसा नहीं हूं, दूसरी बात जब ये मर गया है, अब इनको हमारा वो आदमी जो मुखबिर था वो कहां गया। तो ये खुद क्या हो गए, शक में पड़ गए। इसको कुरान ने कहा वलाकिन शुब्बिह लहुम, वलाकिन शुब्बिह लहुम, ये खुद क्या हो गए, तशवीश में पड़ गए, खलत मलत हो गए, परेशान हो गए। अल्लाह ने फरमाया कयामत तक ये तशवीश तुम्हारी बाकी रहेगी। ये जो तशवीश है तुम्हारी कि ईसा अगर हमने मार दिया है तो हमारा आदमी कहां गया, अगर ये हमारा आदमी है तो ईसा कहां गया। सवाल है कि नहीं है? अगर ये हमारा आदमी है तो ईसा कहां गए, अगर हमने ईसा को मार दिया है तो हमारा आदमी कहां गया। ये जो तशवीश है कयामत तक बाकी रहेगी उनकी तशवीश। आगे फरमाया अब यहूदियों का अकीदा ये बन गया कि हमने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल कर दिया। कुरान ने कहा वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह, उनका कौल है, यहूदियों का कहना है, यकीनन हमने ईसा बिन मरियम को जो कि अल्लाह का रसूल है, हमने उनको कत्ल कर दिया, मार दिया। अल्लाह ने फरमाया वमा कतलूहु वमा सलबूहु, अल्लाह ने फरमाया तुमने ना ईसा को कत्ल किया और ना ही तुमने सूली पर चढ़ाई। कुरान जवाब दे रहा है कि ईसा को तुमने कत्ल नहीं किया, तुमने किसी और बंदे को कत्ल किया है। वमा सलबूहु, और ना ही तुमने ईसा को सूली पर लटकाई, वो तो कोई और बंदा है जिसको तुमने लटका दिया था।
वलाकिन शुब्बिह लहुम, फिर आपस में तुम खुद खलत मलत हो गए, फिर खुद परेशान हो गए कि हमारा बंदा कहां गया। ये रहा एक यहूदियों का अकीदा कि उनका कहना है कि ईसा को हमने कत्ल कर दिया। मतलब एक मर्तबा कोई बंदा दुनिया से चला जाए फिर वापस नहीं आता, है कि नहीं है? कोई बंदा दुनिया से चला जाए, मर कर चला जाए, वो बंदा वापस नहीं आता। हर इंसान को मौत का मजा चखनी है। तो एक बंदा वापस मर गया तो वापस नहीं आता। तो उनका अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के करीब वापस नहीं आएंगे। और उन्होंने हजरत ईसा को जो कत्ल किया था इसलिए किया था कि ये मसीह जो आया है ये जलालत वाला है, गुमराह करने वाला मसीह है। इस अकीदे की, इस गलत फहमी की बुनियाद पर उन्होंने हजरत ईसा को मारने के लिए गए थे, लेकिन वो खलत मलत हो करके किसी अपने शबीह को कत्ल किया था। बहरहाल एक अकीदा है हजरत। अब ईसाइयों का अकीदा क्या? ईसाइयों का अकीदा यह है, ईसाइयों में दो फिरके हैं। ईसाइयों के अंदर अकीदों में दो फिरके। ईसाइयों के अंदर कई फिरके हैं, आपस में कई फिरके हैं, लेकिन अकीदों में दो फिरके हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो ईसाई हैं उनको मानने वाले, ईसाइयों में अकीदे के एतबार से दो फिरके बन गए। एक फिरका कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहूदियों ने कत्ल किया और उन्होंने हजरत ईसा को सूली पर चढ़ाई। फिर वो अल्लाह ताला ने उनको आसमानों में उठा लिया। वो कयामत के करीब आएंगे। कैसे आएंगे? नासोती बनकर, खुदा बनकर के आएंगे। कयामत के करीब खुदा बनकर के आएंगे। और ये भी कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो सूली पर लटकाया गया था, वो सूली पर लटकाना तमाम ईसाइयों के गुनाहों का कफ्फारा है। मतलब ये है कि ईसाई जितना भी गुनाह करे, अब उसका बदला उसके मुतालिक कोई पूछताछ नहीं। कई को इसलिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर जो लटकाया गया ये इसीलिए था कि वो ईसाइयों के सारे गुनाहों का कफ्फारा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ढो लिए हैं। अब जितने भी गुनाह ये करेंगे कोई पूछताछ नहीं होगी। किसका कहना है? ईसाइयों का एक ग्रोह का कहना है। दूसरी ग्रोह का अकीदा यह है, वो कहती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहूदियों ने कत्ल तो किया था, यहूदियों ने कत्ल किया था, लेकिन वो मरे नहीं थे। उनको जिंदा आसमानों में उठा लिया गया। और वो कहते हैं कि वो कुर्बे क़यामत वापस लौट कर आएंगे, लेकिन फैसला करने के लिए आएंगे। किस लिए आएंगे? फैसला करने के लिए। ये अकीदा ईसाइयों का दूसरा गिरोह कहता है। यहां पर एक और कादियानियों ने एतराज किया। अब कादियानियों का भी एक अकीदा है, वो भी सुन लो, उसके बाद उनके एतराजात, फिर उसके बाद जवाबात कहूंगा। कादियानियों का अकीदा यह है, कादियानी कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहूदियों ने कत्ल तो कर दिया, कत्ल करने किए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उनको मारा, अब नबी की तौहीन अल्लाह को बर्दाश्त नहीं। उनका कहना है, कादियानियों का कहना है कि नबी की तौहीन अल्लाह को बर्दाश्त नहीं, इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेहोश कर दिया। कादियानी कहते हैं कि हजरत ईसा को बेहोश कर दिया अल्लाह ने। अब यहूद समझने लगे कि ये तो मर गया है, ईसा तो मर गया है, अब मरे हुए इंसान को फिर क्या मारे, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। चंद लम्हों के बाद जैसे ही ये लोग गुजर कर चले गए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को होश आया।
जैसे ही होश संभाला तो फौरन वहां से निकल करके कश्मीर आ गए। अल्लाह अकबर। मजीद क्या कह रहे हैं देखिए, कुछ अकल में बात आ रही है आपको। तो कश्मीर आए कहते हैं लोग, कौन? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कश्मीर आए। कश्मीर में श्रीनगर आकर वहां पर कोई एक छोटा इलाका है, उस मकाम पर 80 साल जिंदा रहे, फिर वहां पर कब्र उनकी बनी। किसका अकीदा? ये कादियानियों का अकीदा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक ये तमाम अकीदे, यहूदियों का अकीदा अलग, ईसाइयों का अकीदा अलग और कादियानियों का अकीदा अलग। अब मुसलमानों का भी अकीदा है। मुसलमानों का अकीदा पेश करने से पहले मैं एक उनका एतराज फिर उसका जवाब दूंगा। हजरत कादियानियों ने कहा, जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप कह रहे हैं कि आसमानों पर उठा लिया गया, आसमानों पर उठाने के लिए वहां पर दो मकामात ऐसे हैं। एक मकाम आसमान का एक हिस्सा ऐसा है सारा का सारा आग है, दूसरा एक मकाम ऐसा है वहां पर खालिस बर्फ है। कादियानियों का कहना है, एतराज कर रहे हैं वो, कि आसमानों में से एक मकाम ऐसा है, वहां आसमानों में जाने के लिए एक मकाम ऐसा है, वहां पर खालिस आग है, जो भी आदमी जाए, जो भी चीज जाए, जल जाए। एक मकाम ऐसा है आसमान में, वहां पर खालिस बर्फ है, जो भी जाए जम जाए, या तो जल जाना या तो जम जाना। अब आसमानों में ईसा गए, या तो जल गए होंगे या तो जम गए होंगे। कादियानियों का एतराज, उसका जवाब सुनिए। उसका जवाब यह है, कादियानियों का एतराज का जवाब यह है कि इन्ना कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना मसला ईसा कमसली आदम। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल तो ऐसी है जैसे आदम की। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम। अल्लाह के नजदीक ईसा बिन मरियम की जो मिसल है, मिसाल है, वो तो कैसी है? कैसी है? आदम की तरह है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वालिदैन के बगैर पैदा हुए, ना आदम का कोई बाप है ना कोई मां। और इसी तरह से हमने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो पैदा किया है, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो पैदा किया है, वो बगैर बाप के हमने ईसा की पैदाइश की। तो यहां पर एक शक्ल पाई जाती है। दूसरी शक्ल यह है, फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमने आसमानों से नीचे उतारा और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जमीन से ऊपर उठाया। उनको आसमानों से नीचे उतारा, इनको जमीन से ऊपर उठाया। जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से उतर रहे थे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्यों नहीं जले, क्यों नहीं जमे? समझ में बात? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतरते वक्त में जल जाना चाहिए था, जम जाना चाहिए था, क्यों न जले? दूसरा जवाब यह है, अल्लाह के नबी के मुतालिक हम सबका अकीदा यह है कि अल्लाह के नबी मेराज में गए थे कि नहीं गए थे? जाना कुरान से साबित है। कुरान कहता है कि अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह एक ही रात में सातों जमीन, सातों आसमान, जन्नत, जहन्नम, अर्श, सारे मकामात को अल्लाह के नबी ने सैर करके आए थे। और यह भी हमारा अकीदा है, अल्लाह के नबी का जाना जिस्म के साथ था, ना ही ख्वाब। अल्लाह के नबी जो आसमानों में गए वो जिस्म के साथ गए थे, एक ही रात में गए थे। जन्नत का भी दीदार हुआ, जहन्नम का भी दीदार हुआ, अल्लाह ताला से भी गुफ्तगू हुई, बहुत कुछ हुआ। तो मेराज में अल्लाह के नबी जब गए आए तो अल्लाह के नबी क्यों नहीं जले? सही है। तीसरी दलील यह है, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की,
इसके भी दलील कुरान से है। कुरान कहता है हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही दुआ की अपने हवारियीन के लिए, अल्लाह ताला ने जन्नत से मेवों को उतारा, जन्नत से दस्तरखान उतरा था। सूरह माइदा में उसकी पूरी तफसील मौजूद है। कुरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही दुआ की, अल्लाह ताला ने जन्नत से दस्तरखान उतारा था। तो जन्नत से दस्तरखान उतरते हुए क्यों नहीं जला? जल जाना चाहिए था, जल जाना चाहिए था, नहीं जला। और ये हमारी 3 दलीलें इसके लिए काफी थी। समझ में आया? तो सारी चीजें कुरान, उनका एतराज का जवाब कुरान कहता है। एक और एतराज उनका ये है, कादियानी कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हारी दलील के मुताबिक अगर मान भी ले कि हजरत ईसा आसमानों में उठा लिए गए, अगर आसमानों में जब उठा लिए गए हैं, वहां पर ईसा है, तो क्या खा रहे हैं? अजीब एतराज है। आसमानों में है तो जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ को खाना पड़ता है, तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या खा रहे हैं? ये एतराज उनका दूसरा एतराज। उसका जवाब एक तो ये है कि एक तज़हीकी जवाब ये है कि तुमने तो होटल खोल के नहीं रखा है। कादियानियों ने होटल तो खोल के नहीं रखा है ना। तो जवाब ये है, कुरान कहता है उसकी दलील कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर एक मलकूती सिफत थी, एक इंसानी सिफत थी। इंसानी सिफत इस एतबार से है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई है मरियम से, इसलिए उनके अंदर इंसानी सिफत भी है। दूसरी मलकूती सिफत इसलिए है कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको सूर फूंका था। किसमें? हजरत मरियम के पेट पर हजरत मरियम के पेट पर फूंका था, फूंक मारी थी, तब जाकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पेट के अंदर बनना शुरू हुए थे। तो इस एतबार से उनके अंदर मलकूती सिफत भी है। अब कुरान कहता है कि फरिश्ते क्या नहीं करते, ना खाते हैं ना पीते हैं, उनको खाने की जरूरत पड़ती है। तो दोनों सिफात पाए जाने की वजह से फरमा रहे हैं कि इस वक्त आसमानों में अगर है तो मलकूती सिफत पर है, दुनिया में अगर है तो यहां पर खाने की जरूरत पड़ती है, यहां पर खाया था, आसमानों में है वहां पर कोई भूख वगैरह नहीं। अब समझ में बात, ये इसकी दलील है। अब हमारा अकीदा ये है, मुसलमानों का साफ अकीदा बताकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। अब मुसलमानों का, हमारा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अकीदा ये है कि कुरान हमारे लिए दलील, हदीस हमारे लिए दलील। कुरान जो कहे, हदीस जो कहे, उसको कभी इनकार नहीं किया जा सकता, कभी उसको धुतकारा नहीं जा सकता। कुरान साफ तौर पर कहता है कि हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया। क़ुर्बे क़ियामत वो क्या करेंगे? क़ुर्बे क़ियामत आसमानों से हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतरेंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। किसको कत्ल करेंगे? दज्जाल को कत्ल करेंगे। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आना, फिर दज्जाल को कत्ल करना, किस अंदाजे से आएंगे और किस तरीके पर ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, किस तरीके से कत्ल करेंगे, साथ में कौन कौन लोग होंगे और कब तक ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत चलेगी, कैसे चलेगी, उस वक्त के हालात क्या होंगे, वो सारी चीजें इंशाअल्लाह हो सके तो आइंदा जुमा अर्ज करूंगा। वरना अभी जनवरी 1 आ रहा है, इसके मुतालिक भी मुझे कुछ गुफ्तगू करनी थी, लेकिन वक्त नाकाफी है, इसीलिए अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। एक बात बता दूंगा, एक बात यह है कि अभी जो जनवरी 1 आने वाला है, इसमें आप हजरात जो मुबारकबादी पेश करते हैं, यह बिल्कुल शरीयत के खिलाफ है। ऐसी हरकत कभी ना करें। आमतौर पर हमने ये भी देखा है, हैप्पी न्यू ईयर कहने के लिए, मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए लोग 31 दिसंबर को रात के 12 बजे तक जागते हैं।
रात के 12 बजे तक वेटिंग करके सारे दोस्तों को एकदम से फॉरवर्ड करते हैं उसको, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर ये बोलना करको मैसेज किया जाता है। तो रात तक इसलिए इंतजार करते कि ताकि हैप्पी न्यू ईयर सबको बोलूं मैं, और बाकायदा उस रात में पटाखे फोड़ना, आइसक्रीम मुंह पर थोपना, और इसी तरह से केक काटना, खिलाना, दोस्तों को जमा करना, ये सारी हरकतें गैरों के हैं, उसको हम लोगों ने भी अपना लिया। उन तरीकों को बाकायदा हमारे नौजवान करते हैं, खासकर हमारे नौजवान क्या होती, उनके साथ शरीक हो जाते। अल्लाह के खातिर इन तमाम चीजों में आप शिरकत न करें। और यहां तक कि हमने ये भी पढ़ा है कि जनवरी 1 के दिन जितने गुनाह होते हैं उतना किसी और दिन नहीं होते। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से कई ऐसी चीजें लोगों ने इख्तियार कर रखी हैं, गुनाह बहुत ज्यादा कर लेते हैं, मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह के खातिर कोई भी इसको ना करे, अल्लाह का वास्ता देता हूं, कोई भी ऐसी हरकत न करे। इसकी हैप्पी न्यू ईयर कहना, इसकी मुबारकबादी देना शरीयत की रूह से, इस्लाम की रूह से बिल्कुल जायज नहीं, ये तो गैरों का तरीका है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तशब्बह बिगैरि कौमिन फहुव मिनहुम, जो आदमी गैरों के तरीके को इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं अल्लाह मुझे और आपको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।